میری مراد صدر مجلس جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفیظ الدین صاحب ڈائریکٹر حسنہ ایجوکیشنل ارریہ بہار ہیں. میں حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا صدارتی کلمات فرما کر ہم سب سامعین کو مجلہ و مشرفہ فرمائیں. معزز سامعین، میں انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی باتوں کو ختم کروں گا. آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ جو بھی باتیں آپ سنیں گے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ آئے دن ہمارے اس علاقے میں بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، دینی پروگرام ہوا کرتے ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں، دینی معاملے میں ہم جہیں کے تہیں پر ہیں. اور خاص کر ہمارا جلسہ سننے کا مقصد کچھ علماء اکرام کی سریلی آواز کو سننے کا مقصد ہوتا ہے، جو نہ آپ کو دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ ہی آخرت میں آپ کو اس کے بارے میں اس کے ذریعے سے کچھ فائدہ ملے گا. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور پھر اس سرزمین کے اندر، اس سرزمین کے اوپر، آسمان و زمین کے بیچ ہمیں اور آپ کو چلنے پھرنے کے لیے اصول و ضوابط دیے اور یہ حکم دیا کہ اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی استطاعت رکھے تو اس کے لیے حج بھی فرض ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں. اور خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے کو بھی ہم بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے کہ اگر بنی نوع انسان سے کسی طرح کی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم اس روزی میں سے، اس رزق میں سے، اس دھن و دولت میں سے خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، یعنی میں نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کیجیے. دھن دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی میں سے اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا. مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی کوئی امانت کسی کے پاس جمع کی اور آپ نے کہا کہ چند دنوں کے بعد یہ چیز تو مجھے لوٹا دینا، تو وہ آدمی آپ کو لوٹا دے گا. سیم من و عن یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دھن دولت دے کر آزمانے کا قصد کیا ہے اور فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ ہم نے جو تم کو روزی روٹی دی اسی میں سے تم خرچ کرو. کب تک؟ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم کو موت آ جائے، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے تم خرچ کرو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرما دیا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، کہ جب آدمی کو موت آنے لگے گی، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے گا، تو وہ فرمائے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے رب اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا اگر تو مجھے وقت دے دے، فَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں صدقہ کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ یہ سب کچھ
अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई है। इसलिए तुम अल्लाह के रास्ते में उसी की दी हुई चीज को तुम खर्च करो। और साथ ही साथ वक्त की अहमियत की तरफ इशारा किया। कब? मौत आने से पहले पहले। आज हम और आप वक्त की कदर नहीं करते। किसी से अगर मुलाकात करने का वक्त देते हैं 3 बजे, हम पहुंचते हैं 4 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत मुख्तसर सी जिंदगी हमें अता की है, इसलिए हमें चाहिए कि हम वक्त की कदर करें। हम अल्लाह तबारक व ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व ताला ने जो काम करने से हमें मना किया उससे बाज रहना चाहिए। और साथ ही साथ में अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा के अंदर इस तरफ भी इशारा किया कि आदमी आखिरत की तैयारी करे। क्यों? इसलिए कि जब मौत आएगी तो वो ये तमन्ना करेगा कि थोड़ी सी मोहलत हमें दे दीजिए, लेकिन उस वक्त आपको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्चा करें और अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर दें। मैं और एक आयत आपके सामने पढ़ूंगा, उसकी भी तशरीह करूंगा, मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। अब जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने धन और दौलत से नवाजा है, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, धन दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने सोना चांदी को खर्च नहीं करते और वो उसको जमा करके रखते हैं, तो उसको दर्दनाक अजाब के बारे में बता दीजिए। तो अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे तो फिर हमें दर्दनाक अजाब में जाके जलना पड़ेगा और वहां पे हमें रहना पड़ेगा। और यह चीज आदमी को बहुत ही ज्यादा खसारा पहुंचाने वाली है। इस चीज को आदमी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। उसके बारे में आता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कयामत के दिन जन्नती को जन्नत में और जहन्नमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तो जहन्नमियों के बारे में आया है कि वला यमूत फीहा वला यहया। अम्मा पारा के अंदर ही है कि वो आदमी जहन्नम में रहने की वजह से वो ना मरेगा ना वो जिंदा हो पाएगा। यानी उसकी हालत ऐसी हालत हो जाएगी कि ना वो जिंदा होने के ही काबिल रहेगा और ना उसको दोबारा मौत आएगी। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि आदमी की हालत बदतर से बदतर हो जाएगी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने हमें जो दिया है, हम अल्लाह के रास्ते में जरूर खर्च करके जाएं। इसलिए कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम। आप देखिए इस आयत के अंदर कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपनी माल को, अपने माल और दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बिल्लैल वन्नहार, जब चाहते हैं तब खर्च करते हैं, रात में भी खर्च करते हैं, दिन में भी खर्च करते हैं, जब उसको वक्त मिलता है उसी वक्त खर्च करते हैं। पहली आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ मैंने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, लेकिन इस आयत के अंदर अल्लाह ने मालो दौलत को इंसान की तरफ निस्बत कर दिया कि आदमी अगर अपनी मालो दौलत को, जिसको वो अपनी समझ रहा है, हम और आप जो भी कमाते हैं उसको हम अपनी दौलत समझ रहे हैं, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो दिनों रात जब चाहता है तब खर्च करता है, सिर्रन व अलानिया, जाहिरी तौर पर अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खर्च करते हैं, और छुपे तौर पर, खुफिया तौर पर, यानी चुपके से भी अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और उसमें भी
अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने का मकसद होता है, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला के पास ही उसका अजर है, उसका बदला है। और हम और आप जानते हैं कुरान और हदीस के अंदर अगर हमने एक नेकी किया तो उसको अल्लाह तबारक व ताला 100 से लेके 700 गुना तक उसको बढ़ा देता है। हमें मालूम है कि अगर हम एक नेकी का काम करके जाते हैं तो अल्लाह ताला उसको 100 से लेके 700 तक बढ़ाता है। दूसरी रिवायत के अंदर इससे ज्यादा के बारे में कहा गया, यानी गोया के अगर हम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस 1 रुपये को बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 700 रुपये तक पहुंचाता है। तो इस तरह से अगर हम 100 रुपया खर्च करेंगे तो उसको आप 700 से गुना दे लें, कितना होगा। तो इसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसका अज्र अल्लाह तबारक व ताला के पास ही है। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ये इस किस्म के आदमी होंगे जो कभी किसी खौफ में नहीं होंगे और वो गमगीन भी नहीं होंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको जो भी इस्तिताअत दिया है, जितना भी होता है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जलसे का मकसद क्या है, कमेटी का। लेकिन मैं हर जगह कमेटी से भी एक इल्तिमास करता हूँ कि आप जहाँ पर जलसा करते हैं इदारे को चलाने के लिए, चंदा के लिए, वहां पर एक मकसद और आप उसके अंदर ऐड कर देंगे तो उसमें आपको अजर मिलेगा। वो ये है कि हम इस जलसा के जरिए से एक दीनी पैगाम को लोगों तक पहुंचाएंगे, दीन इस्लाम को आम करेंगे। और दूसरे नंबर पे यह है कि इसके जरिए से जो भी हमें कुछ मिलेगा उसके जरिए से हम इदारा चलाएंगे, क्योंकि वो भी मकसद है कि आदमी के अंदर दीनी बेदारी लाई जाए, दीनी तालीम दी जाए, मकसद वही है। लेकिन अगर इसके जरिए ये भी मकसद हमारा शामिल हो तो जरूर अल्लाह तबारक व ताला हमारे जलसे को भी कामयाब करेंगे और हमारे इदारे भी कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। खालिस होना चाहिए, देने वाले का मकसद भी खालिस होना चाहिए कि अगर इदारे के अंदर वो कुछ देते हैं तो उसका अज्र अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ ही मिलेगा। मैं आपको एक हदीस बताऊंगा, अपनी बातों को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। आप में से बहुत सारे लोग जिनको दीनी जानकारी नहीं है, वो अपने पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से डरते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं, अगर हम उसमें से 1,000 दे देंगे तो 1,000 हमारा घट जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे इस्लामी भाइयों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नकसत सदकतुन मिन मालिन, यानी अगर आप सदका देते हैं, कहीं कुछ दानो खैरात करते हैं तो आपकी मालो दौलत में से कुछ कमी नहीं आएगी, उसमें से कुछ भी नहीं कमेगी। अल्लाह तबारक व ताला उसमें बरकत देगा और वो 9,000 रुपये आपके 90,000 रुपये के बराबर काम देगा। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और जाके लाखों लाखों रुपया उसका खर्च हो जाता है। सदका के बारे में आया हुआ है, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व ताला बला और मुसीबत को दूर कर देता है, आपके लाखों रुपये को अल्लाह तबारक व ताला बचा देता है। इसलिए आपके जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि आप अगर किसी इदारे में 2 रुपये, 10 रुपये, 10,000, 20,000 देंगे तो आपकी दौलत में कुछ कमी आ जाएगी। माशाअल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि इस इदारे से एक बच्चा भी फारिग हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। होना चाहिए इस तरह से कि वहां से बच्चे भी फारिग हो, कुरान को अपने सीने में लेके निकले। हम में से इतने लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर अभी मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिसको आधा पारा कुरान याद है, तो मुझे नहीं लगता होगा कि 1-2 आदमी से ज्यादा कोई हाथ उठाएगा। ये बहुत बड़ी शर्फ की बात है। इसलिए ये एक कामयाबी की दलील है कि आपके इदारे से एक बच्चा फारिग भी हो रहा है। तो इस तरह से होना चाहिए। मैं और
ایک بات عرض کروں گا جلسہ کمیٹی سے اور آپ لوگوں سے بھی کہ چونکہ ہم کو صدارتی کلمات کے لیے کہا گیا تو میں چونکہ اصلاحی جو پہلو ہو سکتی ہے اس پہ میں 2-4 منٹ میں روشنی ڈال کے باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں نے ابھی اشتہار دیکھا، اس کے اندر کسی مداری کا نام نہیں ہے، وہ انہی علماء کا نام دیا ہوا ہے کہ جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے لہجے میں قرآن و حدیث کی بات سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مداری بلائے جاتے ہیں، قصہ کہانی والے ڈرامہ باز کو بلائے جاتے ہیں، اور وہ جلسوں میں آ کے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی بات کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کا جلسہ سے کیا لینا دینا ہے۔ کیا قرآن و حدیث کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس چیز کو پڑھ کے علماء عوام کے سامنے وہ چیز رکھی جائے، ان کو وہ چیز بتائی جائے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کسی بھی چیز کا ذکر نہ ہو، کوئی بھی چیز چھٹی ہوئی ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اصلاحی پہلو ہونا چاہیے، اور علماء اکرام کے لیے بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ جلسہ کے اسٹیج میں، علماء اکرام کے بیچ میں، عوام الناس کے بیچ میں وہ مداری بن کے ڈرامہ بازی کرے، بالکل یہ پسند نہیں ہے۔ اس چیز سے، اس طرح کے جلسوں میں کوئی برکت نہیں ہوگی، نہ اس ادارے میں کوئی برکت نازل ہوگی، اس لیے کہ اس کا مقصد ہی دوسرا رہتا ہے۔ تو میں جلسہ کمیٹی سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ علم شخصیت کو بلائیں، اچھے علماء کو بلائیں جو قرآن و حدیث کی بات کریں۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، میں نام لے کے نہیں بولوں گا، آج سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک عالم نے اسٹیج پر بیٹھ کے ہمارے پورے بہار کو بدنام کیا اور پورے بہار کے سماج کو بدنام کیا۔ ڈھیٹ پنی اسی نے کی بیٹھ کے، اس نے کہا کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، آپ کو پتا ہوگا کہ میں ایک عالم دین ہوں، میں 30,000 40,000 روپے لے کے میں جلسے میں آتا ہوں، اور ہمیں سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور میں اگر یہاں سے 9 بجے بھاگ جاؤں، وہ جلسہ کامیاب ہوگا یا اس کا کیا حشر ہوگا آپ کو پتا ہے۔ اس مقرر سے 4 مہینہ پہلے ڈیٹ لیا گیا، اور 3 دن پہلے ان کا کہنا ہے کہ میں جلسے میں نہیں جا سکتا، میرے ساتھ یہ مجبوری ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا نام ہم نے جلسے میں بہت پہلے سے دے رکھا ہے، اور آپ نہیں آئیں گے، ہم لوگوں کی بے عزتی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو جھوٹا نام چھاپ دیا ہے، پھر اگر اگلی بار آپ کا نام دیتے ہیں تو بہت سارا سوال کھڑا ہوگا۔ وہ عالم دین آئے اس کے اندر، اور آنے کے بعد انہوں نے ناظم جلسہ جو ابھی یہ مولانا مجھے مدعو کیا، میں آ گیا، وہ بلا بلایا کے بیٹھ کے تقریر کر کے وہ نکل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک جلسہ کمیٹی کے آدمی نے کہا کہ بھئی آپ تقریر نہیں کریں گے، کچھ دیر بیٹھے ہی رہیے، اس لیے کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ہمارا جلسہ بند ہو جائے گا۔ یہ کون سی خراب بات کہہ دی تھی اس آدمی نے، اس کمیٹی نے کون سی خراب بات کہہ دی تھی؟ اس عالم نے کہا، کیا کہا کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، غلامی کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو کہوں گا کہ آپ غلام ہیں۔ آپ 40,000 روپیہ لے کے آتے ہیں یہاں پر، 30,000 روپیہ لے کے آتے ہیں یہاں پر، ٹکٹ کا ٹکٹ لیتے ہیں، ایک جلسہ والے کو آپ 50,000 60,000 خرچ کرواتے ہیں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ دائی ہیں، آپ مخلص ہیں، کہاں سے ملا آپ کو یہ اس طرح کرنے کا؟ اور پھر اپنے فیس بک وال پہ لکھا، فیس بک وال پر لکھا کہ کوئی وہاں پر ایک عالم نہیں تھا، سب جاہل بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب جاہل بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عالم نے پورے بہار کے لوگوں کو بدنام کیا، اور پھر علماء کو بدنام کیا، جہالت سے تعبیر کیا، یہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے جلسہ کمیٹی کو ایسے علماء اکرام کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہ ایک عالم ہمارے بہار کے ہیں، وہ ہمارے جلسوں میں آ کے اپنی دکانداری چمکائی، اور اسی آدمی نے ہمارے جلسوں میں جا کے
बैतुल्लाह शरीफ के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ, मस्जिद नबवी के खिलाफ गलत सलत प्रोपेगेंडा करना चालू कर दिया। लेकिन हम ही लोगों ने उसको सीमांचल से बाहर का रास्ता दिखाया कि कोई भी बात होती है समझदारी की बात होनी चाहिए। आप ऑन रिकॉर्ड वीडियो के सामने आप इस तरह की बात कर रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह के उलमा को ना बुलाएं जो इस तरह के डिमांड है। अभी माशाअल्लाह आपके सामने हजरत मौलाना शेख मेराज रब्बानी साहब आए हुए हैं। आप लोग जानते होंगे ना, उनका नाम दिया हुआ है। इंटरनेशनल आलिम है, बहुत बड़े आलिम है। सिर्फ वो इंडिया ही में नहीं करते हैं तकरीर, बल्कि सऊदी अरब में रहते हैं और वहां पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां यहाँ। तो उस तरह के उलमा को बुलाएं। ऐसे उलमा के पास इल्म होता है, वो आवाम के दर्द को समझते हैं। इस तरह के आलिम अगर होते, अगर उनको आप बोलते कि मौलाना आप 10 मिनट और बैठे रहे, तो वो 1 घंटा बैठे रहते। इस तरह से हर धर्मी स्टेज पर बैठ के नहीं करते। इसलिए इस तरह के उलमा को स्टेज में आप लोग जगह दें और इनकी बातों को सुने। इंशाअल्लाह वो आएंगे, कल भी उनका बयान हुआ है, आप लोग उनकी बातों को सुने होंगे और आज भी सुनेंगे। कुरान और हदीस से भरी हुई मुदल्लल सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह। और इनके हाथ से कितने बरेलवी लोग भी अहले हदीस हो गए, कितने दूसरे मसलक के लोग भी अहले हदीस हो गए। सऊदी अरब के अंदर कितने गैर मुस्लिम भी हुए। उनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत काफी दिनों से जानता हूँ। इसलिए आप उनकी बात जरूर सुन के जाएं। और मैं फिर आखिर में एक बार ये कहूंगा कि हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस की बातों को सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक दे। इसलिए कि हमें और आपको अल्लाह ने अमल से बहुत दूर रखा है। ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती है। हम और आप अगर कुरान और हदीस की रोशनी में अपना जायजा लें तो खुद को शर्म आएगी कि हम किस तरह के मुसलमान हैं कि हमसे 5 वक्त की नमाज अदा नहीं हो पाती है। इसलिए हम और आप जब नमाज पढ़ने के लिए जाएं, अल्लाह ताला से जरूर दुआ करें कि अल्लाह तू हमें अपने करीब रख और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि हमारी और आपकी उम्र जो है सिर्फ 20 साल है। ये जो हिसाब जोड़ते हैं 60 साल, 70 साल, 80 साल, ऐसा नहीं है कुछ। कैसे नहीं है? हम लोगों की शादी 20-22 साल में हो जाती है। हम 25 साल तक, 30 साल तक रोजी रोटी की तलाश में कुछ कमाने के चक्कर में रहते हैं। उसके बाद घर बार बनाने के चक्कर में रहते हैं। 10-20 साल हमें कुछ कमा के इकट्ठा करने के लिए मिलता है। 40 से 45 साल, 50 साल की उम्र होती है, 100 तरह की बीमारी लाहिक हो जाती है। खत्म कहानी हमारी। इसलिए हम हिसाब 60 साल, 70 साल का ना जोड़े, आज का ही हिसाब जोड़े कि आज तक हमें अल्लाह ने जिंदा रखा है, हमने कितना काम किया। सोते वक्त जरूर अपने गुजरे हुए दिनों का हिसाब करें कि हमने कितना नेकी का काम किया और हमने कितना गुनाह का काम किया, कितनी नमाजें हमने छोड़ी और कितनी नमाजों को हमने वक्त पर अदा किया। काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक जिंदगी बाकी रहेगी तब तक काम पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वक्त पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जब इस दुनिया से उठाए, जब हमारी मौत हो तो ईमान की हालत में हो, ताकि जो हमारी उखरवी जिंदगी है, जो हमारी हमेशगी की जिंदगी है, जहां पर दोबारा मौत नहीं आएगी, वहां पर जाके हमें सुकून से रहने के लिए मिले। और ये धोखे की जिंदगी में हम रुपये पैसे के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में उखरवी जिंदगी को हम खराब ना करें। यही से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी बातों को सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक दे और जब हमारी और आपकी इस दुनिया से रुखसत हो तो ईमान की हालत में हो और मरने के बाद हमें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।